Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope you all are doing the reading practice of the chapter that we are doing. And you know that we are doing chapter 8 of your main course book, of your English textbook. The name of the chapter is Blackie the Clever Crow. Children, I'm explaining you this chapter, I'm reading this chapter for you and also explaining you the chapter paragraph wise. Not only the explanation of chapter is going on, but also explanation of difficult words, the meaning of difficult words, as well as grammar, from grammar point of view also I'm explaining you the chapter, the nouns, the verbs, describing words, then prepositions, pronouns, all these also I'm explaining along with the explanation of the chapter. Sentence by sentence we are discussing all these things. In the previous videos I have explained 5 paragraphs. 5 paragraphs I have already explained to you. If you have not seen those paragraphs, if you have not seen those videos, please go through those videos, the paragraphs that I have explained in detail. And in today's video, I will be continuing with the paragraph that I had started in the previous video. Usko मैंने start किया था, but I could not complete that. So that paragraph I will continue in today's video. But before that, let's revise what we have studied so far. Children, the name of the chapter is Blackie the Clever Crow. So, as the name says, this chapter is actually about a crow whose name is Blackie. So, in this chapter, there was a farmer named Kishanlal. And that farmer lived in a faraway land, in a desert. He was a very caring, kind-hearted person who used to help the poor people. So what happened? One morning, Kishanlal found a crow. Where did he find the crow? He found the crow lying on the doormat of his house. So he very carefully he picked the crow and gave him some water to drink. The crow had been flying for great distance, for miles, and he was very tired. The crow was very tired. So Kishanlal gave him some water, and also what he did, he prepared a little bed for the crow. How did he prepare the bed? He prepared a bed in a shoe box. He took a shoe box and prepared bed for him so that the crow can rest. So, in a few days, the crow recovered. He became as healthy as he was. He got back his strength and also became Kishanlal's friend. वो जो crow था, वो Kishanlal का दोस्त बन गया. And he used to follow Kishanlal perching on his shoulder. उसके कंधे पर बैठकर और वो Kishanlal को follow करता था. जहाँ जहाँ Kishanlal जाता था, crow भी उसके साथ ही रहता था, उसके shoulder पे बैठा रहता था. Now there were other farmers, Kishanlal's other friends. They used to make a fun of Kishanlal. वो Kishanlal का मजाक उड़ाते थे. क्यों उड़ाते थे? For his newfound friend, for his friend crow. Now children, I have explained you this concept कि normally लोगों को लगता है कि घर में अगर किसी को pet रखें या किसी को friend बनाए तो वो it should be something beautiful. कोई beautiful bird को आप pet रख सकते हैं, किसी beautiful animal को pet रख सकते हैं या friend बना सकते हैं like peacock और parrot और some other colorful birds. लोगों के दिमाग में हम सबके दिमाग में एक रहता है कि एक सुंदर bird रहना चाहिए. एंड उनको लगा कि काले से ब्लैक क्रो को किशनलाल ने फ्रेंड बनाया हुआ है और उन लोग उसका मजाक उड़ाते थे. एंड आई टोल्ड यू दैट वी शुड नॉट मेक फ्रेंडशिप बाय लुकिंग एट द फेस ऑफ समवन. किसी का फेस देखकर, किसी के लुक्स देखकर हमें फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए. नेचर, बिहेवियर हमें अच्छा लगना चाहिए और हम फ्रेंड बना सकते हैं, क्योंकि लुक्स कैन बी डिसेप्टिव. हो सकता है कि कोई दिखने में बहुत सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, लेकिन उसका नेचर अच्छा ना हो, आपके साथ उसकी पटे ही ना, ऐसा भी हो सकता है.
सो नेवर पे अटेंशन टू सच थिंग्स। अगर आपको लगता है कि कोई काम आप सही कर रहे हो और उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, इफ यू थिंक इट इज करेक्ट यू शुड कंटिन्यू विद दैट एंड डोंट पे अटेंशन टू व्हाट अदर पीपल्स टॉक अबाउट इट। बाकी लोग क्या बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपका काम सही हो, अगर आप अपनी जगह पर सही हो, तो वैसे ही किशन लाल को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि अरे उसने क्रो को फ्रेंड बना लिया है। एंड ही यूज्ड टू लव द क्रो, और प्यार से नाम रखा ब्लैकी, क्योंकि क्रो ब्लैक होते हैं तो इसीलिए क्रो का नाम रखा गया ब्लैकी। देन व्हाट हैपेंड, वन नाइट when there was no moon in the sky, it was dark night, some thieves entered किशन लाल्स farm। कुछ जो चोर थे वो किशन लाल के फार्म में घुस गए। Now this Blackie, he saw them, he spotted them, उसने उन चोरों को देख लिया। अब क्योंकि उसे लगा कि ये तो किशन लाल के फार्म में घुस रहे हैं, किशन लाल का नुकसान करेंगे अगर चोरी करके ले जाएंगे, तो व्हाट ही द क्रो डिड, ही स्टार्टेड काउइंग लाउडली, जोर जोर से काव काव करने लगा। क्यों काव काव करने लगा? सो दैट जो नॉइस सुनेंगे लोग या किशन लाल तो जग जाएंगे और उन्हें लगेगा कि जरूर कुछ कहीं खतरा है। सो टू वार्न देम अबाउट द डेंजर ही स्टार्टेड मेकिंग नॉइस, द क्रो स्टार्टेड मेकिंग नॉइस, स्टार्टेड काविंग लाउडली। तो काव काव की आवाज सुनकर किशन लाल और नेबर्स जाग गए और उन्होंने चोरों को पकड़ लिया। द थीव्स वर कॉट and they were taken to the police station. But one of the thieves, उन सारे चोरों में से एक जो चोर था वो छुप गया। कहाँ छुप गया? वहाँ क्रॉप्स रखे हुए थे काट कर, जो फसल जो रेडी हो गई थी, जो क्रॉप्स रेडी हो गए थे वो काट कर रखे गए थे, तो जो फ्रेशली काट के रखे गए थे क्रॉप्स थे उसके पीछे वो छुप गया, इसलिए वो किसी को दिखाई नहीं दिया और वो पकड़ा नहीं गया। बाकी सारे चोर पकड़े गए जिन्हें की पुलिस स्टेशन ले जाया गया। Now the thief who was hiding in that farm, वो क्रॉप्स के पीछे जो छुपा हुआ था, he was very angry with किशन लाल। Why he was angry? Because किशन लाल took his friends to the police station। किशन लाल उसके दोस्तों को पुलिस स्टेशन पकड़वा दिया था, तो वो बहुत गुस्से में था। And he wanted to take revenge, वो बदला लेना चाहता था। कैसे बदला लेना चाहता था? He decided to burn the crops of his farm. He decided to set fire to the crops on किशन लाल्स farm. किशन लाल के फार्म पे जो क्रॉप्स रखे हुए थे उसने डिसाइड किया कि वो उनमें आग लगा देगा। अब आग लगाने से क्या होगा, क्या नुकसान होगा? सारा क्रॉप्स जल जाएगा, है ना, सारे क्रॉप्स जल जाएंगे। एक जो किसान होता है उसके लिए क्रॉप्स कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं ये मैंने आपके साथ डिस्कस करना चाहा था पिछले वीडियो में, बट वी कुड नॉट कंटिन्यू दैट। जो खेत एक क्रॉप लगाने के लिए किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खेतों को रेडी करना पड़ता है, फील्ड को रेडी करना पड़ता है, उसकी टिलिंग करना होता है, उसमें बीज डालते हैं, सीड्स डाले जाते हैं, उसको टाइमली उसको पानी देना होता है, फिर उसको इंसेक्ट्स से बचाना होता है, पेस्ट से बचाना होता है, बर्ड्स से बचाना होता है, पूरी रखवाली करनी होती है, टाइमली धूप मिलना चाहिए उसको प्रॉपर, तब कहीं जाकर कोई क्रॉप रेडी होता है जिसे कि हम बड़े आराम से खा लेते हैं घर में और कभी कभी फेंकते भी हैं। बट थिंक ऑफ द हार्ड वर्क, दैट इज थिंक ऑफ द एफर्ट पुट इन बाय द फार्मर टू ग्रो दैट क्रॉप्स। तो बहुत मेहनत होती है किसान का, समझ लीजिए कि वो वेल्थ है क्रॉप, और उसी को अगर कोई आग लगा देगा तो किसान का कितना नुकसान हो जाएगा, है ना। तो बदले की भावना से, रिवेंज की भावना से उसने जो थीफ था उसने डिसाइड किया कि वो उसकी क्रॉप में आग लगा देगा। सो ही वेटेड फॉर द नेक्स्ट नाइट, अगली रात तक उसने वेट किया। दिन में ये काम कर नहीं सकता था, दिख जाता सबको, तो उसने रात तक का इंतजार किया और फिर रात को ही क्रेप्ट इनसाइड द फार्म, उसने फार्म के अंदर वो घुसा और हाथ में उसने एक फ्लेमिंग टॉर्च लेके रखा था, जो जलती हुई मशाल होती है वो उसने हाथ में लेके रखा हुआ था ताकि वो क्रॉप्स में आग लगा सके। आग होगा तभी ना लगाएगा, तो आग लेके वो धीरे से फार्म में वो घुसा। आगे ब्लैकी ने उसको देख लिया, वो अलर्ट था ब्लैकी, काफी एकदम सतर्क था, तो उसने फिर से उस चोर को देख लिया और उसने ये भी देखा कि चोर ने हाथ में
आग लिया हुआ है, उसने स्टिक ली हुई है, फ्लेमिंग टॉर्च लिया हुआ है, जलती हुई मशाल पकड़ी हुई है। अब क्रो को समझ में आ गया था कि ये कुछ गलत करने वाला है, ये जा रहा है आग लगाने के लिए। नाउ क्रो रियलाइज्ड वन थिंग, अब उसको लगा कि जैसा उसने पहले काँव काँव करके किशनलाल को जगाया था, अब वो ट्रिक काम नहीं आएगी। क्यों काम नहीं आएगी? क्योंकि जब तक कि वो काँव काँव करके किशनलाल को जगाएगा तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक तो वो जो चोर है वो खेतों में क्रॉप्स में आग लगा चुका होगा, है ना। तो अब इसके आगे से हमें पढ़ना है। आई विल राइट द पैराग्राफ टू एक्सप्लेन एंड आई विल एक्सप्लेन यू लाइन बाय लाइन। Blackie realized by the time farmer Kishanlal would come out of his house awakened by its cows. The thief would have set fire to the crops. Valiant Blackie not caring for its life pecked at the thief, trying to distract him. The thief at first shooed it away, but Blackie kept attacking him. Tired, the thief tried to shoot Blackie. Blackie was hurt, but the shot awakened everyone.
एक्सप्लेन कर देते हैं एज पर द स्पेस ऑन द बोर्ड. लेट मी रीड दिस फॉर यू. Blackie realized by the time farmer Kishan Lal would come out of his house, awakened by its cows, the thief would have set fire to the crops. यहाँ तक मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था. ठीक है, अब आगे पढ़ रहे हैं. Valiant Blackie, not caring for its life, pecked at the thief, trying to distract him. The thief at first shooed it away, but Blackie kept attacking him. Tired, the thief tried to shoot Blackie. Blackie was hurt, but the shot awakened everyone and the thief was caught. Okay, now here it is mentioned that Blackie realized, मतलब उसको समझ में आ गया, Blackie को ये बात मतलब दिमाग में उसके आ गई कि चैप्टर का नाम है ना क्लेवर ब्लैकी, क्लेवर क्रो. ब्लैकी द क्लेवर क्रो. तो क्रो कैसा है? क्लेवर है. उसने रियलाइज कर लिया कि जब तक वो काव काव करेगा, उसकी काव काव की आवाज सुनकर किशन लाल बाहर निकलेगा घर से और जाग कर, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी. तब तक तो चोर आराम से क्रॉप को आग लगा चुका होगा. मतलब उसको लगा कि जो पहले वाली ट्रिक थी काव काव करने वाली, वो इस वक्त काम नहीं आएगी. पहले तो काव काव करके उसने किशन लाल को जगा दिया था, नेबर्स भी जाग गए थे. लेकिन इस बार अगर वो वही ट्रिक अपनाता, फिर से काव काव करके जगाता, तो इतना टाइम नहीं था, क्योंकि जब तक वो उठ के बाहर आएगा किशन लाल, तब तक तो क्रॉप में आग लग चुकी होगी. क्रॉप को आग लगाने में कितना टाइम लगता है? क्रॉप्स सूखे हुए क्रॉप्स है, प्रिपेयर्ड क्रॉप्स है, क्योंकि खेतों से काट के उसको फ्रेशली कट क्रॉप्स रखा हुआ है, तो उसको आग लगाने में कितना टाइम लगेगा? झट से लग जाएगा. तो इतना टाइम नहीं है कि मैं किशन लाल को जागने का वेट करूं. तो उसने क्या किया? वैलिएंट ब्लैकी मतलब बहादुर, करेजियस, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की. ही डिड नॉट केयर फॉर हिज लाइफ. ठीक है, उस दूसरा बर्ड होता कोई तो सोचता अरे बाबा कौन चोर के लगे, चोर मुझे मार डालेगा तो, कहीं चोर कुछ कर देगा तो. लेकिन क्रो ने इसकी परवाह नहीं की. क्यों नहीं की? अपनी फ्रेंड की खातिर. किशन लाल ने उसकी जान बचाई थी ना, तो इस चीज को क्रो हमेशा ध्यान में रखा और उसने फिर अपनी जान की परवाह नहीं की और उसने सोचा कि मेरे फ्रेंड किशन लाल का कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए. ये दिमाग में रखते हुए उसने अपनी जान की परवाह नहीं की. यहाँ लिखा है वैलिएंट ब्लैकी. ब्लैकी कैसा है? वैलिएंट है, बहादुर है, करेजियस है. नॉट केयरिंग फॉर इट्स लाइफ, वो बहादुर है ना, हिम्मत वाला है, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की. नॉट केयरिंग फॉर इट्स लाइफ मतलब अपनी जान की केयर नहीं करना, अपनी जान की परवाह नहीं करना. पेक्ड एट द थिफ. ये पेक क्या होता है? जब चिड़िया चोंच मारते हैं ना बर्ड्स लोग, उसको पेकिंग बोलते हैं. आपने देखा होगा कभी कभी वो जो पेड़ का जो ट्रंक होता है, ट्री का ट्रंक होता है, उस पर भी वो चोंच मारते हैं, पैकिंग करते हैं. या जमीन पे पैक करते हैं, जब वो दाना चुन रहे थे तब पैक चोंच मार मार के कभी कभी करते हैं. दैट चोंच मारना इज कॉल्ड पैक करना. ठीक है, जब बर्ड अपनी चोंच मारते हैं, हिट करते हैं चोंच से, उसको पैकिंग कहा जाता है. तो उसने क्या किया? अपनी जान की परवाह नहीं की और उसने क्या किया? पेक्ड एट द थिफ. उसने चोर को चोंच मारना शुरू किया. अभी चोंच मारने से क्या होगा? जैसे जब चोंच मारेंगे तो उसने सोचा कि मैं चोर का ध्यान भटकाता हूँ. डिस्ट्रैक्ट करना मतलब अटेंशन को दूसरी तरफ करना, डाइवर्टिंग द अटेंशन. चोर का क्या काम था? वो चोर क्या करने जा रहा था? चोर जा रहा था क्रॉप में आग लगाने. ठीक है, तो क्रो ने सोचा कि इसका ध्यान अब मैं हटाता हूँ, अब इसको डिस्ट्रैक्ट करूंगा, इसका अटेंशन अब दूसरी तरफ करूंगा. अब ये इसका ध्यान क्रॉप में आग लगाने की बजाय अपने आप को बचाने में लगेगा. जब कोई चिड़िया कोई चोंच मारेगी तो हम क्या करेंगे? हम अपने आप को पहले बचाएंगे ना, ऐसे ऐसे करेंगे या उसको भगाएंगे. हम तब थोड़ी ना क्रॉप को आग लगाने जाएंगे, पहले तो
अपनी जान देखेंगे कि ये चोंच मुझे मार रहा है, चोट क्योंकि क्रो की चोंच टाइट होती है, हार्ड होती है, चोट लग सकती है, तो वो चोंच मार रहा था। तो क्रो ने चोंच में इसने क्या किया, थीफ ने क्या किया कि द थीफ एट फर्स्ट शूड इट अवे, उसको करके भगाते हैं ना, शू करना मतलब ऐसे ऐसे करके भगाना, शू करके भगाना, पुश पुश। अभी क्रो चोंच मार रहा था, कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड शूइंग। तो उसने पहले तो ही ट्राइड टू शू इट अवे, उसने उसको ऐसे ऐसे करके भगाना चाहा, बार बार जो क्रो है वो चोंच मार रहा है। तो चोर ने क्या किया, उसको कोशिश की कि उसको ऐसे पहले तो हिश करके भगा दे और अपना काम करे, लेकिन क्रो तो उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, उसको उसका अटेंशन ही कहीं और वो कर रहा था, डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। तो क्रो कितना भी वो थीफ कर रहा था और ये उसको बार बार पेक कर रहा था। बट ब्लैकी केप्ट अटैकिंग हिम, पर कितना भी शू कर रहा था, लेकिन ब्लैकी जो था वो उसको अटैक करते जा रहा था। पेक कर रहा था मतलब अटैक कर रहा था, चोर को वो नुकसान पहुंचा रहा था, उसको चोंच मार रहा था। सो ही कंटिन्यूड अटैकिंग हिम, बट ब्लैकी केप्ट अटैकिंग मतलब ही कंटिन्यूड अटैकिंग एट द थीफ, थीफ को वो अटैक करता रहा। टायर्ड द थीफ ट्राइड टू शूट ब्लैकी, अब क्या है, चोर थक गया, भगा, बार बार वो क्रो को भगा रहा है, बार बार क्रोस पे अटैक कर रहा है। तो अब ये जो चोर था ये थक गया और उसने क्या किया, ही ट्राइड टू शूट करना मतलब गोली मारना, उसने गोली मारने की कोशिश की। ही ट्राइड टू शूट मतलब गोली मारना, गोली से मार देना, जान मार देना जिसको कहते हैं ना, ट्राइड टू शूट ब्लैकी, शूट करना मतलब किसी को जान से मार देना यूजिंग गन। शूट का मतलब होता है किसी को जान से मार देना। तो चोर ने कोशिश की कि उस ब्लैकी को जान से मार दे, गन से उसको मार दे, ठीक है। तो ही द थीफ ट्राइड टू शूट ब्लैकी, उसने ब्लैकी को शूट करने की कोशिश की, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ब्लैकी वॉज हर्ट, ब्लैकी को चोट तो लग गई पर वो मरा नहीं। ब्लैकी वॉज हर्ट का मतलब है कि उसको चोट लगी, बट ही डिड नॉट डाई, ही ट्राइड टू शूट, लिखा है ना, दैट ही ट्राइड टू शूट, शूट करना मतलब गोली मार देना, जान चली जाना, लेकिन वो मरा नहीं, डेथ नहीं हुई ब्लैकी की। ब्लैकी वॉज हर्ट, उसको चोट लगी, गोली से हो सकता उसके विंग्स को टच करके चली गई होगी। बट द शॉट awakened everyone and the thief was caught। अब क्योंकि रात का टाइम था, सब लोग सो रहे थे, तो जब वो गोली की आवाज आई, शॉट की जो आवाज आई, गोली चलाते हैं तो डेफिनेटली आवाज होती है, तो जो आवाज हुई शॉट की, उससे क्या हुआ, अवेकन्ड एवरीवन, सब लोग जाग गए, गोली की आवाज ने सबको जगा दिया। द शॉट अवेकन्ड एवरीवन, गोली की आवाज ने सबको जगा दिया। एंड द थीफ वॉज कॉट, और वो चोर पकड़ा गया। अब एक बात सोचिए कि जब वो जो क्रो था, वो जब पेक कर रहा था, तो चोर ने पहले ही क्यों नहीं उसको गोली मार दी, पहले ही क्यों नहीं शूट कर दिया, इतनी देर तक वो शू क्यों करता रहा। आपको क्या लगता है, वो चाहता तो पहले भी गोली मार देता। आपने ऐसा, आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि उसने क्यों ऐसा किया। उसने सोचा होगा कि दिस इज व्हाट आई थिंक, कि चोर ने सोचा होगा कि क्रो ही तो है, मैं शू करूंगा तो भाग जाएगा, ऐसे ही आ गया होगा और मुझे देख के चोंच मार रहा होगा, मैं शू करके उसको भगा दूंगा। पहले तो उसने यही सोचा कि अगर उसको ये डर होगा ना कि अगर गोली चलाऊंगा तो सब लोग जाग जाएंगे, ये डर उसके मन में होगा कि गोली चलाऊंगा, अगर मैं गन से शूट करूंगा तो गोली की आवाज जो है, शॉट की आवाज से लोग जाग जाएंगे। इसीलिए उसने शुरू में तो प्रिकॉशन लिया, उसने शू करके भगाने की कोशिश की। लेकिन जब वो थक गया, यहाँ लिखा है टायर्ड, जब एकदम टायर्ड हो गया, देन ही गेव अप, फिर उसको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो उसने गोली मार दी। तब उसका ये हो गया कि डर भी शायद खत्म होगा कि ठीक है अब गोली ही मार देता हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। और तब उसके दिमाग में ये नहीं आया कि गोली की आवाज से तो लोग जाग जाएंगे, क्योंकि वो इतना परेशान हो गया वो जो क्रो के पैक करने से, कि उसको ध्यान ही नहीं रहा कि गोली मारने से उसकी आवाज से लोग जाग जाते हैं,
जाएंगे। अदरवाइज उसने तो पहले ही गोली मार दी होती। पहले तो उसने अपनी कोशिश की क्रो को भगाने की, लेकिन फाइनली जब वो एकदम थक गया, जब उसको कोई और ऑप्शन नहीं मिला, तब उसने गोली चलाई, तब उसने शूट किया। He tried to kill the crow, मतलब उसको लास्ट ऑप्शन ये लगा, और जबकि उसको पता तो होगा ही कि गोली चलेगी तो मैं पकड़ा तो जाऊंगा ही, लेकिन उसको फिर कोई ऑप्शन, क्योंकि उसके पास था नहीं, ये लास्ट ऑप्शन था उसके पास। तो ये जानते हुए भी कि गोली की आवाज से मैं पकड़ा जा सकता हूँ, उसने गोली चलाई, क्योंकि उसको कोई और ऑप्शन नहीं मिला। क्रो ने इतना परेशान कर दिया अटैक कर करके कि उसको गोली चलानी पड़ी, और आवाज सुनकर लोग जाग गए और वो चोर पकड़ा गया। क्या उसको पहले नहीं पता था कि वो पकड़ा जाएगा गोली चलाएंगे तो? लेकिन उसको कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसको ब्लैकी ने इतना ज्यादा परेशान कर दिया था, उसको पैक कर करके उसको तंग कर दिया था कि उसको गोली चलानी पड़ गई, और इस तरह से वो जो चोर था वो पकड़ा गया। गॉट इट? तो ब्लैकी ने अपना इतना दिमाग लगाया, दो देयर वॉज डेंजर ऑफ लूजिंग हिज लाइफ, देयर वॉज डेंजर टू हिज लाइफ, उसकी लाइफ को प्रॉपर खतरा था। गोली अगर लग जाती प्रॉपरली तो ब्लैकी मर भी सकता था, है ना, क्योंकि थीफ ने तो शूट किया ही। गोली अगर लग जाती तो चला जाता, वो मर ही जाता। और ये ब्लैकी भी जानता था कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन उसने अपने फ्रेंड की खातिर, अपने दोस्त की खातिर उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। ही डिड नॉट केयर फॉर हिज लाइफ एंड ही फॉट विद द थीफ। उसने चोर के साथ प्रॉपर सामना किया। ही फेस द थीफ, ही फॉट विद द थीफ। लिटरली उसने लड़ाई ही की ना, उसका सामना किया चोर का। बर्ड कैसे सामना करेगा? बर्ड के पास तो कोई वेपन होते ही नहीं है, उसके पास उसकी चोंच है या उसके क्लॉज हैं, दो ही चीजें हो सकती हैं बर्ड के पास। तो अपने जो मैक्सिमम क्रो कर सकता था उसने पूरी कोशिश की, चोर का सामना किया उसने, ये जानते हुए भी कि मेरी लाइफ को खतरा है। पर उसने अपने फ्रेंड की पूरी हेल्प की एंड ही सक्सीडेड, और वो सफल भी रहा ना। चोर तो पकड़ा गया, चोर को पकड़वाने में वो सफल रहा। थोड़ी उसको चोट आई, डेफिनेटली क्रो को चोट आई, लेकिन अल्टीमेटली उसने अपने फ्रेंड को बचा लिया, उसके क्रॉप को बचा लिया। फ्रेंड को बचा लिया मतलब उसके क्रॉप को जलने से बचा लिया, और चोर को उसने पकड़वा दिया। गॉट इट? आई होप ये आपको पैराग्राफ बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब इसको हम थोड़ा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, पहले तो मतलब रियलाइज का मतलब होता है अंडरस्टूड। रियलाइज मतलब अंडरस्टूड, और बाय द टाइम मतलब जब तक की, बोलते हैं ना बाय द टाइम, जब तक की किशन लाल बाहर आता उठ के तब तक देर हो जाती। तो बाय द टाइम मतलब जब तक की। यहाँ पर जो रियलाइज है दिस इज वर्ब, एक्शन है, समझना, ये एक्शन है। ब्लैकी तो नाउन है, हमें पता ही है, और फार्मर भी नाउन है, टाइम इज ऑल्सो नाउन। देन किशन लाल नाउन। कम आउट ऑफ हिज हाउस, कम आउट बाहर आना इज एक्शन, कम इज एक्शन, ऑफ इज प्रेपोजिशन, प्लेस बताता है, पोजीशन बताता है, तो ऑफ इज प्रेपोजिशन। हिज क्या है? प्रोनाउन है ना, हिज हाउस। हिज हाउस मतलब अपने, उसके घर से। किशन लाल अपने घर से निकलता, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है बाय द टाइम फार्मर किशन लाल वुड हैव कम आउट ऑफ हिज हाउस, किसके हाउस से? अपने घर से। तो यहाँ पे किशन लाल का नाम नहीं लिखा गया है, हिज लिखा गया है, हिज हाउस। किसके घर से? खुद के घर से। तो यहाँ पे किशन लाल के घर की जगह यहाँ पे हिज हाउस लिखा है। हिज इज प्रोनाउन विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ किशन लाल। किशन लाल की जगह हिज लिखा गया है। ठीक है। देन अवेकन, जागना, अवेकन इज अगेन एक्शन वर्ड। थीफ इज नाउन। सेट फायर, आग लगाना, सेट फायर इज अगेन एक्शन। सेट फायर इज वर्ब और एक्शन। क्रॉप्स नाउन है। वैलिएंट, ब्लैकी, ब्लैकी कैसा है? वैलिएंट है। वैलिएंट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, ये डिस्क्राइब कर रहा है ब्लैकी को। सो वैलिएंट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है। देन पैक करना भी एक्शन है। पैकिंग, पैक्ड वर्ब है, एक्शन है।
then trying to distract him, trying कोशिश करना, distract करना is again action, किसी को distract करना is a verb. Shooed away, shoo करना, भगाना is action. Attack, attacking is action, verb. Attack is also action. Tired is also action. Tried is also action. Shoot, यहाँ पर shoot करना is also action, किसी को shoot करना is action. Hurt is again action. The blackie was hurt, उसको चोट लगना, ठीक है. Then caught, पकड़ा जाना is again action. So many verbs are there in this paragraph. Some prepositions are also there, some pronouns are also there. जैसे कि him pronoun है, it pronoun है, here also it is pronoun, जो noun की जगह पे use हो रहा है. For is preposition, to is preposition, okay, of is preposition. तो इस पूरे पैराग्राफ में नाउन्स हैं, वर्ब्स हैं, प्रोनाउंस हैं एंड प्रपोजिशंस भी हैं. और हमने पूरा पैराग्राफ समझ लिया. नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, बट दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आज के वीडियो के लिए इतना ही. गो थ्रू द पैराग्राफ, रीड इट केयरफुली, ध्यान से पढ़िए. और कोई अगर वर्ड नहीं समझ में आया है दैट यू कैन क्लियर इन द ऑनलाइन क्लास. ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.